You people perhaps don't remember she had made a fantastic documentary on Rajiv Gandhi and Raj Kapoor. In fact, they have been my personal favorite documentaries on Indian celebrities. जय जी मेरा सवाल आपसे है कि आज के दौर में कौन सा ऐसा निर्देशक आपको लगता है जो यशराज जी का जादू जो चलता था फिल्मों में वो कायम कर सकता है? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट द थिंग इज़ लाइक मैं एक डायरेक्टर का नाम लूँ और दूसरे डायरेक्टर को मैं ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि ऑल द टैलेंटेड who are all can give a wonderful love stories, they're all fit into this banner. So we have so many directors in this industry who can give wonderful films also. Good evening to the jury members. Can I just say, I think the only other person who can take Yash Chopra's place is his son Adi Chopra. Yeah, one more thing also you must accept. Yash Chopra has created a big base. After his passing away, his son also is keeping up same tradition. Today in the Indian film industry, the Yash Raj films we made a mark. Now so many big filmmakers made and after they couldn't sustain. It is because very peculiar situation of the film industry. But Yash Raj films sustained, and today also the corporate system in a big way they are doing very successful and they are making so many films, and Adi is actually keeping up the prestige of father, and they are very successful. And one more thing I must say, Yash Chopra's direction films, besides the great film Waqt, as Bani Kapoor said, the first film, multi-star film, this Diwar and Trishul, phenomenal films. The way he created Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor, and also the dialogues, punching, and then Kabhi Kabhi next film, then even Silsila. Silsila commercially not be that hit, but still it is a musical, beautiful film it was actually. Then Lamhe, and all internationally it was very well received and still people remember. And Chandni, Sridevi's performance is actually matchless in that film. And they have both films, the Lamhe and this one, Chandni. Similarly, Vijay also, he had but a big lot of multi-star. Yes, he believed multi-star, and also always used to shoot in Switzerland, and beautiful scenic beauty he used to create. And no unnecessary fights, most focusing on the story and the romance and good music and the family subject people used to love. So we really, their films are really monumental, I must say. Good evening to the jury members. My question to you is, ESG is an icon itself. We have also another icon, Dilip Sahab. And recently Dilip Sahab was bestowed with the highest honor. My question to you as a jury member, don't you think that Dilip Sahab's name was also should be recommended for the, for the recipient for the award? What do you want to say about it? I absolutely agree with you. I don't know what the others say, but I absolutely agree with you. And now is the time to give it to them. These people he's 93. We have to give it to them while they are here to appreciate it. Like somebody said, don't send me flowers at my funeral. If you want to give me flowers, give them to me now and I can enjoy them. That's what I feel too. एक और सवाल है मिस्टर कपूर से. One minute. Boni sir, please, you also comment on it. आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और सिमी जी ने भी सही जवाब दिया है. आज दिलीप कुमार साहब को पद्म विभूषण मिला है. उसके बाद जितने भी अवार्ड मिलेंगे उससे मैच नहीं कर पाएंगे. एंड शायद इसीलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं था जो हम आज डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज ही इज बियॉन्ड so many other, Padma Vibhushan is the second highest civilian award of our country. And if at all we were in part of the jury for the Bharat Ratna, perhaps we would have discussed and given it to him. Not being disrespectful to this award, but the thing is, after getting Padma Vibhushan, if we honor him with this, it wouldn't be appropriate. In fact, he should be
put up at a higher pedestal. I mean, as I said, अगर भारत रत्न की जूरी में होते हम सब एग्री करेंगे, क्यों सिमी जी? उनको अगर भारत रत्न की जूरी में हम होते तो हम उनका नाम आता तो डेफिनेटली उन्हीं को देते। तो उसके बाद पद्मा विभूषण मिलने के बाद अगर हम कोई और अवार्ड की बात करें तो हम उनकी इज्जत पे, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनकी जो इज्जत है वो पद्मा विभूषण से जो बड़ी है, अब उससे आगे जानी चाहिए। ये अवार्ड है जो बाकी लोगों ने भी जो कंट्रीब्यूट, जैसे अमित जी को लास्ट ईयर मिला, उनको भी पद्मा विभूषण उसके बाद मिला है। पद्मा विभूषण अमित जी को उसके बाद मिला है। आज पद्मा विभूषण के बाद अगर कोई भी अवार्ड दिया जाता है किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनकी पूरी तरह इज्जत नहीं कर रहे हैं, उससे ऊपर का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। मिस्टर कपूर, हम सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं। आजकल के सुपरस्टार हैं सलमान खान, हु इज टर्निंग 50 दिस ईयर। मिस्टर कपूर, दिस साइड, हाय। सॉरी या सो वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टार्स। हम सलमान खान इस साल 50 इयर्स के हो रहे हैं। आपने 2 बड़ी फिल्में दी हैं उनके साथ, और शायद नो एंट्री में एंट्री, द सीक्वल टू नो एंट्री इज ऑल्सो अवेटेड। सो आपकी क्या राय है उनके बारे में एज एन एक्टर? इस साल वो 50 इयर्स पूरे कर रहे हैं। मेरी अकेले राय से क्या होगा? पूरी जनता जनार्दन उनके दीवानी है और उनके काम से मतलब इतने ज़्यादा प्रसन्न है कि आज की तारीख में सबसे बड़े स्टार हैं हिंदुस्तान के। और मेरी यही दुआ रहेगी कि ये सितारा हमेशा चमकता रहे, आगे बढ़ता रहे और भी बड़ा स्टार बने इंटरनेशनल फ्रंट पे। थैंक यू सो मच। अब मेरा सवाल सिमी जी और जयप्रदा जी से है। यश चोपड़ा ने बहुत सारी फिल्में बनाई और जिस तरह से रोमांस उनकी फिल्मों में दिखता था किसी और की फिल्म में नहीं दिखता था। बहुत रोमांटिसाइज करते थे चीज़ों को, ग्लोरीफाई करते थे। क्या अगर मैं एक सवाल पूछ सकूं आप दोनों से कि कभी आप लोगों ने इमेजिन किया कि काश उस फिल्म में उस हीरोइन की जगह मैं होती? आप दोनों ने मतलब कि ये फिल्म में मुझे हीरोइन होना चाहिए यश चोपड़ा की फिल्म में। हर एक फिल्म में, आई विश हर एक फिल्म में मैं होती। किसी एक फिल्म में अगर ज़्यादा आपको लगा हो। अच्छा, पहले जय जी जवाब देंगे, तब तक मैं सोचूंगी, फिर मैं जवाब दूंगी। ठीक है। ऐसा है कि हर फिल्म, जितना भी फिल्म हम लोग कितने लैंग्वेजेस में भी हम करें, लेकिन ऐसा लगता है कि मन नहीं भर रहा है, और एक फ़िल्म करो और अच्छी फिल्म करो, इसी तरह रहता है। एसजी के साथ मेरा संबंध बहुत ही अच्छा था। और मैंने उनके डाबर आमला का जो ऐड करने का टाइम, बहुत लंबा जो ऐड किया मैंने, उसको बहुत काफ़ी समय दिखाया। उस वक्त कभी कभी फिल्म बनने के बाद मन में ये सोचा था कि काश मैं ये फिल्म किया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो तेलुगु ऑफ़र मुझे मिला, तो मैं तेलुगु में करने के बाद थोड़ा मेरे अंदर तसल्ली हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आई मिस्ड हिम। इस बॉलीवुड के दौरान जितने फिल्म्स मैंने की सक्सेसफुल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं एसजी को मिस किया। सिमी मैम, योर टर्न। बहुत सोचा, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। I would like to play any film with him, whichever he would have thought fit. It's very difficult, और इससे फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि अभी हो ही नहीं सकता, you know what I mean? So it doesn't matter. अब क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये, अब देखिए मैं सिमी जी का फैन बचपन से रहा हूँ और मैंने मतलब इनकी जोकर फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था काश मेरी भी टीचर ऐसी होती। तो मैं ऐसा समझता हूँ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल्म फॉर हर ऑफ ऑल दी यशजी's फिल्म्स वुड हैव बीन डर, जहाँ पे एक लवर भी और एक ऑब्सेसिव लवर भी है। मतलब सनी देओल भी था और एक ऑब्सेसिव लवर था शाहरुख खान। तो जूही चावला, डोंट गो बाय दैट। इट्स you know, I remember in my school days there were many students, many of my colleagues who literally yearned for having a glimpse of Simi Ji whenever she came on the screen and whenever she was written about, the photographs. So there's definitely this thought in me that if at all she had to do a film for Yash Ji, it could have been Dar in her prime time.
Sorry, not that you're not in your prime time now. जब हमारे बुजुर्ग ऐसे बातें करते ना तो फिर हमको चुप रहना पड़ता है, करेक्ट? Okay? Now, in conclusion, I am very grateful for the precious time they spared as jury members and given the final decision of the award winner, Simi Gravel, Bonnie Kapoor, my Jai Prada, Anuranjan, Shashiranjan. I thank all of you them, and I thank all of you, the press, for having come with a great enthusiasm and spared a lot of time, and we also enjoyed. सिमी जी क्या कहना चाहेंगे? थर्ड यश चोपड़ा जी का मेमोरियल अवार्ड दिया जाए, एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द जूरी फ्रॉम द पास्ट 2 years, if I'm not wrong. So what do you want to say? How does it feel? It's just like a responsibility, you know, to award someone. तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? It's a wonderful thing to award somebody. I think all of us in this film industry, we work for appreciation, and we work for not only awards and rewards, but just for people to say, well, you were great this year, or we think you're wonderful and we want to honor you. And I think that's what we're trying to do with this award function. We're trying to honor the people who have contributed so much, who are legends in their own lifetime. I mean, Lata ji, who can compare to her? Amitabh Bachchan, he's phenomenal. And now Rekha ji, who's unique. You know, she's... for me, it's a double pleasure because not only is she a great actor on screen, but she's a personal friend of mine and somebody who I really get on very well with, and I love her. She's a wonderful person. There's not even a dot of negativity in her. There's nothing but goodness flowing from her. Believe me, we talk for 4 hours on the phone at a time, and as soon as we finish our conversation, I feel so good. She makes you feel very good being with her. आपके लिए अवार्ड कितना स्पेशल है? यश राज जी का जो स्पेशल अवार्ड है, आपके लिए ये अवार्ड कितना मायने रखता है, कितना स्पेशल है आपके लिए? नहीं, मुझे तो खुशी है कि हम लोगों को जिन्होंने इतना काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है, और जो लेजेंड बन के हम उनको ऑनर कर रहे हैं, करना चाहिए। और मैं हमेशा सोचती हूँ, जैसे किसी ने सवाल पूछा था कि यूसुफ साहब, दिलीप साहब के लिए अवार्ड, आई फील जब हम लोग ज़िंदा हैं, जब हम सब ज़िंदा हैं, तभी सब प्यार और मोहब्बत और फूल और अवार्ड सब देने का टाइम होता है। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि जब लोग पॉस्ट्यूमस अवार्ड्स देते हैं, और जब कोई गुजर गया है या कोई सोल्जर भी गुजर गया है और तब देते हैं, तो तब क्या फ़ायदा है? उसको तो पता भी नहीं, उसको तो उसका असर भी नहीं, उसकी खुशी भी नहीं वो महसूस कर सकता है। मुझे यही लगता है। कहीं ना कहीं दिलीप साहब को भी अवार्ड पहले ही दिया जाना चाहिए, जो कि मुझे लगता है जी, मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा एहसास होता है। मुझे लगता है कि पहला अवार्ड उन्हीं को जाना चाहिए था, लेकिन ये तो सब जूरी की बात है, सब लोगों को ये सोचना चाहिए और सब फील करना चाहिए, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये सही बात है। डोंट यू थिंक बहुत लेट था? क्योंकि अभी जब वो पद्मा विभूषण भी आया था तो मुझे लगा जैसे कि वो उनका ध्यान नहीं था उस पर। और सब हमेशा हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड देते हैं जब लोग बुढ़े हो जाते हैं, बीमार बुढ़े। क्यों भाई, क्यों? Ma'am, one last thing. Yash Chopra's Memorial Award is a great honor for any actor, but in recent times, talking about the current generation, do you think any of the actors, if you want to name an actor who is eligible enough to receive this honor, who would be it? Shah Rukh Khan. Definitely Shah Rukh Khan, Salman Khan. They've all not only, I think they've acted in his films, haven't they? I don't know. Yeah, Shah Rukh Khan. Shah Rukh, I know. I think Shah Rukh. I think Shah Rukh is very deserving of the award simply because, they reinvented romance in Dilwale Dulhania Le Jayenge and set a new standard of romance. And Shah Rukh on screen is magic. He's pure magic, and I'm totally in love with him. Thank you, ma'am. Thank you so much. कैसा रहा आज का ये कार्यक्रम, और क्या आप सर्वसम्मति से आप लोगों ने रेखा जी का नाम पारित किया? जी, सबसे पहले मैं इस जूरी में रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और क्योंकि ये खुशखबरी है, क्योंकि आज ये जो यश जी का जो
इंटरनेशनल अवार्ड Memorial. उनके मेमोरियल अवार्ड मिलना और रेखा जी को ये नवाजा गया जाने वाले हैं, तो इस खुशखबरी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई है। ख़ास तौर मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ सुब्रमण्यम रेड्डी जी को, उनके दोस्ती के लिए एसजी के साथ, जो सुब्रमण्यम रेड्डी जी का जो दोस्ती की वजह से आज इस महत्वपूर्ण इस अवार्ड को जो टैलेंटेड हो और लेजेंड्स हो उन लोगों को इस अवार्ड्स को देने के लिए तय किया है। सबसे पहले इस अवार्ड को लता जी को दिया था और उसके बाद श्री अमित जी को दिया, और ये तीसरी जो अवार्ड है रेखा जी को देना। रेखा जी के साथ मुझे एक फ़िल्म में काम करने को मौका मिला और मैं उनके फिल्म्स देखते देखते हम बड़े हुए हैं, और आज उनके लिए जूरी में बैठकर उनके टैलेंट को पहचानने के लिए एक मौका दिया गया। और इस अवार्ड के लिए जितने जूरी बैठे हैं, और बोनी जी हों या सुब्रमण्यम रेड्डी जी हों, सिमी अग्रवाल जी हों, वैसे ये अनु जी और शशि जी, ये सब जो है एक जूरी बैठकर एक इस अवार्ड को, एक टैलेंट को पहचान कर उनको सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडस्ट्री को एक पहचान देना, और इंडस्ट्री हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट अगर अच्छी फिल्म को लेकर एक अच्छे परफॉर्मेंस अगर करेंगे तो सिर्फ एसजी के फिल्म्स के सीमित ना रहते हुए बाहर फिल्म्स को भी मौका दे रहे हैं। जय जी, साउथ इंडियन एक्ट्रेस, दक्षिण भारतीय जो एक्ट्रेसेस हैं वो हमेशा ही हिंदी फिल्मों में बिल्कुल ऊपर रही हैं। आप हैं और भी कई एक्ट्रेसेस हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी मैं मानती हूँ, क्योंकि नॉर्मली साउथ से नॉर्थ आने पर बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से ये देखते हुए। लेकिन हम लोगों के लिए एक फिल्म्स जो है, जो हम लोगों ने जो फिल्म सेलेक्ट किया है, उस फिल्म्स को द्वारा मैं अगर मेरा द्वारा जो है, जो भी अगर सरगम के द्वारा मैं पहली फिल्म मानकर मैं आई हूँ, तो इस इंडस्ट्री ने मुझे स्वागत किया और आशीर्वाद दिया, और लोगों ने भी बहुत प्यार किया। मैम, कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी रही है। अभी रिसेंटली हमने आपका और श्री जी को साथ में देखा, तो दैट वाज अ बिग मोमेंट। आपको लगता है आपके ज़माने में आप लोग कॉम्पिटिटर्स थे, नाउ कमिंग टुगेदर ऑन द सेम स्टेज? Yes, it took 25 years, more than 25 years for us, and but always I treated her that she is my younger sister, but she is also a wonderful actress, and हम लोगों ने काम किए हैं, चाहे हिंदी में हो या तेलुगु में हो, वी आर रियली वेरी हेल्दी कंपटीशन हम लोगों के होते थे। तो हेल्दी कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम लोगों के जो टैलेंट को अंदर से बाहर निकालने के लिए एक वजह तो ज़रूर चाहिए। और टचवुड हम लोग जिस मीडिया के दौरान हम लोगों को रेवल्स मानते थे, लेकिन उसी मीडिया के द्वारा हम लोग दोस्ती के मुकाम तक पहुँचे हैं, और इस दोस्ती हमेशा कायम रहे। मैम, आपको लगता है आजकल की एक्ट्रेसेस में ये दोस्ती है, एक्चुअली रहती है? एक्चुअली इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्ती इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो हर रोज़ हम लोग मिल के हम दोस्त हैं बोलने के लिए भी इतना समय नहीं रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इंडस्ट्री में और भी अच्छे टैलेंट्स आए हैं, यंगस्टर्स आए हैं, और भी अच्छी फिल्म्स बने हैं। तो इंडस्ट्री में कंपटीशन, इवन द टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो बहुत ही कंपटीशन रहा है। जब एक ज्यूरी किसी एक स्टार को, किसी एक सेलिब्रिटी को अवार्ड देना चाहती है, तो आप ज्यूरी में मेंबर्स में कभी मतभेद होते हैं कि नहीं, इसको नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में विश्लेषण के रूप में अगर आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं, विस्तार से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, प्लस माइनस बात नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम जूरी के लिए न्याय नहीं कर पाते हैं। तो हम जितना जो पहले जो अवार्ड्स दिया है, उस अवार्ड्स को भी हम सामने रखते हुए किस आधार पर इसको सेलेक्ट किया गया है, हम उसी टेबल पर हम डिस्कस करते हैं, और जो भी हम लोगों को प्लस माइनस बात करना तो उसी समय पे बात करते हैं। जी, इंडियन एक्ट्रेसेस, एक लास्ट, इंडियन एक्ट्रेसेस गोइंग टू हॉलीवुड नाउ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा एक प्रमोशन की ज़रूरत है। हम लोग जब रीजनल फिल्म्स करते थे तो लोग कहते थे कि अरे आप तेलुगु और हिंदी, तेलुगु तमिल ये सब कर रहे हैं, आप कब बॉलीवुड में जाओगे?
अब मैं बॉलीवुड में आने के बाद लोग हमें भी पूछते थे कि आप हॉलीवुड फिल्म्स को करने का मन है कि नहीं। यहाँ पे पहले से अब एक अपॉर्चुनिटीज़ बड़े हैं, क्योंकि एक कोलैबोरेशन के रूप में लोग जो हैं, जैसे अमेरिका इंडो अमेरिका कोलैबोरेशन है, वैसे हम लोगों को कोलैबोरेशन के रूप में एक गठबंधन जो हो रहा है आजकल, तो ये हॉलीवुड में टैलेंट दिखाने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म भी है। I'm very excited to be here today for Shivani Awasthe's launch of Shadowbox, her new collection. It's couture and I love it. It's beautiful. It fits to my body like a second skin. Her fabrics are outstanding. Her finishing